करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कल का लेक्चर हमारा ओहम्स लॉ पर था। ओहम्स लॉ में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की आज के लेक्चर में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ रेजिस्टेंस, और उस पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। आईआईटी जेईई नीट के लिए जो आपको यूजफुल होंगे, कंसेप्चुअल होंगे। देन यू लिसन दिस today's lecture conceptually, right? Then we'll start the lecture concept of resistance. In Ohm's law we discuss about V proportional to I, means current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied between two ends of conductor, or potential difference between two ends of conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. Therefore V is equal to IR. Then constant of proportionality, that is a resistance of the conductor. This is the resistance of the conductor. Resistance of conductor. Then resistance of the conductor also defined, it is the ratio of the potential difference applied between two ends of conductor to the current flowing through the conductor. Unit of resistance is ohm. Symbol, this is a symbol of ohm. 1 ohm of current, 1 ohm of resistance, 1 ohm of resistance of conductor exactly equal to 1 volt of potential difference applied between two ends of conductor. At that time 1 ampere current is flowing through the conductor, that is 1 ohm. 1 ohm. Dimension of resistance R is equal to what is V, work done per unit charge, right? Therefore energy per unit charge upon I, that is I is ampere, joule per coulomb, right? Charge, joule means energy, m raised to, joule means energy, J upon coulomb ampere. Therefore joule upon A, coulomb means I is equal to Q by T, Q is equal to IT, therefore I in A into A, therefore J upon A square T. This is time, this is ampere, this is joule. Therefore resistance of conductor का dimension क्या आएगा? m raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 2 upon A square means l raised to ampere square means A raised to 2 and t raised to 1. Therefore goes to numerator. Therefore m raised to 1, l raised to 2, A raised to minus 2 and t raised to minus 3. Right? This is joule per coulomb, work done per unit charge, or energy per unit charge, that is potential, that is ampere current measured in ampere. Then joule upon coulomb into ampere, therefore coulomb is equal to I is equal to what? dq by dt, therefore q is equal to what? I into t. I is ampere, t is time. Therefore joule, dimension of joule, that is m raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 2, that is dimension of work or energy. And then ampere square t, then goes to numerator, m raised to 1, l raised to 2, a raised to minus 2 and t raised to minus 2 minus 1 minus 3. And this is the dimension of what? Resistance. These are the simple parameters about the resistance. Unit क्या है, dimensions क्या है, right? 1 ohm क्या define करेंगे. यहाँ पर जो resistance की concept है, वो resistance की concept क्या होती है, मतलब resistance conductor का क्या होता है, अब हम discuss करेंगे. What is the concept of resistance? Listen. We observe that, we listen that in the last 2 or 3 lectures in drift velocity, current constitute through the conductor whenever the net flow of charge gained by the electron, at that time current is flowing through the conductor. Means you apply the external electric field to the conductor
at that time the current flowing through the conductor, right? Then the concept of resistance is generated, and it exactly, you observe that according to Ohm's law, V is equal to IR, right? V is equal to IR. Therefore I is equal to what? V upon R. And you observe that the relation between the current and resistance is both are inversely proportional to each other. Means we simply say that resistance is a opposition offered to the net flow of charge. Means two obstacles are created in the net flow of charge. Means to oppose the flow of current, right? Means resistance is one of the property generated due to the material, substance. मीन्स जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वहां पर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है सब्सटेंस के, वो नेट फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स. जैसे कि कंडक्टर गुड कंडक्टर है तो वहां अपोजिशन कम होगा. मीन्स कॉपर एल्यूमिनियम जैसे है, जैसे रबर प्लास्टिक है तो अपोजिशन ज़्यादा होगा. मतलब वहां पर क्या होगा कि वहां पर करंट ही नहीं फ्लो होगा, और उसे हम बैड कंडक्ट, दे आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स, राइट. अंडरस्टैंड हो रहा है सबको? देखो मैं बता रहा हूं. मीन्स रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी विच क्रिएट्स एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. The path of electron means to oppose the flow of electric current, and this opposition due to the atoms and molecules of the conductor of that substance, right? Whenever the free electrons are collides with the atoms or molecules, then a collision is greater, opposition is greater, then those are the insulators. Means they are not constitute the electric current, because current flowing is totally depends upon the number of free electrons are flow due to the net flow of charge inside the conductor. But there is a collision is very very greater. At that time the opposition is greater, right? Atoms and molecules के साथ में अगर electrons का net flow of charge का collision ज़्यादा हो रहा है तो अपोजिशन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ से करंट ही नहीं फ्लो हो पाएगा. इसका मतलब ऐसा होता है कि जितना अपोजिशन कम होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट करते हैं वो इजीली फ्लो हो पाएंगे, तो उसे हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, राइट. आपके ध्यान में आ रहा है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो सब्सटेंस के हैं वो नेट फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करते हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस फॉर्म होता है. कंडक्टर का रेजिस्टेंस फॉर्म होना मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करेंगे. इट इज द ऑब्स्टैक, इट इज अ प्रॉपर्टी. रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी. रेजिस्टेंस इज अ property to oppose the net flow of charge of electron inside the conductor. Resistance is a property to oppose the net flow of charge of electron, right? अपोजिशन कौन करता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स. जितना अपोजिशन ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, जितना अपोजिशन कम उतना रेजिस्टेंस कम, तो करंट ज़्यादा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यू ऑब्जर्व दैट, राइट. और एक बात ये भी ध्यान में रखो, रेजिस्टेंस जितना ऑफर्ड होगा ज़्यादा होगा, वहां पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स भी, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर हीट हो रहा है तो अपोजिशन ज्यादा होगा. मीन्स वी सिंपली से दैट whenever the electrons are collides with atoms or molecules, at that time some small amount of heat is liberated.
and due to the small amount of heat is liberated during each collision, due to the collision small amount of heat is liberated. जब भी कोलिजन होगा, ईच कोलिजन पर हीट लिबरेट होगी तो कंडक्टर हीट होता जाएगा, वैसे हीट बढ़ती जाएगी, जितना कोलिजन ज़्यादा होगा उतना हीट भी ज़्यादा लिबरेट होगा, तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अंडरस्टैंड हो रहा है सबको, राइट? कोई डिफिकल्टीज, एनी प्रॉब्लम? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की है, दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, राइट? लिसन, वी नो दैट in a drift velocity we discuss the equation I is equal to NeAVD. N is a number of free electrons per unit volume, E is a charge of electron, A is a area of a conductor, Vd is a drift velocity gained by the electron, right? Then I is equal to NeA E tau upon m, right? But E is equal to what? E is equal to what? E into E square. E is equal to V upon L ml into tau, right? Therefore ml into I cross multiply is equal to Ne square A V and tau. Therefore V upon I is equal to V upon I, ये I इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ml upon Ne square A, ml upon Ne square A tau. Therefore V upon I is equal to ml upon Ne square A tau, and we know that V upon I is equal to R. Therefore R is equal to ml upon Ne square A tau. Then again you listen, the equation of resistance in terms of drift velocity, you can find out the length of the conductor, tau, area, charge of electron, mass of electron, number of free electrons per unit volume. Mass of electron constant रहेगा, right? Charge of electron constant रहेगा, number of free electrons per unit volume बढ़ सकते हैं। कैसे? हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ड्यू टू द इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर, टाउ उसके साथ में कम होगा ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। ये जितने बढ़ेंगे मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेस, जितने बाहर आएंगे उतना कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलैक्स कम होगा। रिलैक्स मतलब उसको जो आराम मिलता है, रिलैक्स होने का जो टाइम मिलता है वो कम मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ गए तो झट से दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कोलाइड होगा, इमीडिएटली आ जाएगा। जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो थोड़ी देर में आएगा कोलाइड होने के लिए, लेकिन अगर बढ़ते हैं तो ज़्यादा बढ़ेंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो ये जो टाउ है हम इसे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। एवरेज, जैसे हर कोलिजन में टाउ आएगा, इसलिए जितने कोलिजन्स हो गए उसका जो एवरेज आएगा इसे बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, अंडरस्टैंड? तो आपने लास्ट लेक्चर में या 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है कि R इज proportional to L upon A, means resistance of the conductor proportional to L। यहां पर हमें प्रूफ मिल रहा है। 10th स्टैंडर्ड में हमें डायरेक्टली बताया जाता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट? तो यहां पर हमें वो प्रूफ मिल रहा है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रखना है, एन कांस्टेंट रखना है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो ओम्स लॉ भी ओबे होगा, राइट? टाउ कांस्टेंट रहेगा, तो फ्लक्चुएशन किस में आएगा? लेंथ एंड एरिया।
means resistance of the conductor is depends upon the shape and size of the conductor, that is length and area, right? रेजिस्टेंस जो है वो शेप और साइज पर डिपेंड करेगा। यहां पर एक नई प्रॉपर्टी हम निकालते हैं, R इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। तो ये जो है ये पूरा इसमें ये क्वांटिटी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, दिस इज कॉल्ड एज अ रो, दैट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, resistivity, that is rho, means R is equal to rho L upon A. Therefore rho is equal to what? That is m upon n e square tau. Then we observe that m constant, number of electrons per unit volume, charge tau हम कांस्टेंट रखेंगे। कब? जब टेम्परेचर n और टाउ कांस्टेंट रखेंगे। कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ही कांस्टेंट रख सकते हैं। मींस रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और रो is totally depends upon the number of free electrons per unit volume tau, but at a given temperature. अगर कोई भी मटेरियल आपको दिया हुआ है, कंडक्टर है, एल्यूमिनियम है, जो भी मटेरियल है, उसको अगर हम गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट देंगे तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी हमेशा मतलब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ही रहेगी। अगर आप टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। Means you listen that resistivity of the conductor does not depends upon the shape and size. Not depends upon the shape and size because there is no relation with length and area. It depends, it is a material property. It is the property of material. समझ में आ रहा है? Resistance is depends upon the length and area, but resistivity or specific resistance does not depends upon the length and area. It depends upon the what? Temperature at given temperature हमेशा resistivity given temperature अगर constant है resistivity constant रहेगी। Resistivity does not depends upon the length and area, does not depends upon the shape and size. हाँ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स होगा लेंथ और एरिया पर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। जैसे आप स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, स्फीयर ले लो, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। कॉपर का कोई मटेरियल ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, आयरन का ले लिया, तो वहां पर आप उसको अलग अलग शेप दे सकते हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी नहीं। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट। समझ में आ रहा है सभी को? दिस इज द वन ऑफ द रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और इसी आधार पर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। न्यूमेरिकल्स में ऐसा है कि आप जब R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वहाँ पर रिलेशन भी लेना है कि जैसे सपोज आप ये कंडक्टर लेंगे, यहां पर सपोज ये लेंथ L है, राइट? आप इस कंडक्टर को स्ट्रेच करेंगे ऐसा, तो एरिया कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब अपोजिशन बढ़ेगा, राइट? सपोज ये NL, आपने n टाइम्स इसको जनरल इक्वेशन निकालेंगे, n टाइम्स इसको खींच लिया, राइट? यहाँ पर उसका एरिया सपोज A1 होगा तो यहाँ पर एरिया A2 चेंज हो गया है ना। Then we know that R is proportional to L upon A, तो R1 upon R2 is equal to proportional है तो L1 upon L2 इंटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो A2 अपॉन A1।
राइट। यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, वॉल्यूम कंजर्वेशन। अगर आप लेंथ कंडक्टर की स्ट्रेच भी करते हैं, इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। अगर लेंथ बढ़ती है तो एरिया कम हो रहा है, लेंथ कम हो रहा है तो एरिया बढ़ रहा है। वॉल्यूम कंजर्वेशन मीन्स A1L1 इज इक्वल टू A2L2। पहले जो वॉल्यूम होगा वही स्ट्रेच करने के बाद होगा, राइट। वॉल्यूम कंजर्वेशन लेना है तो A1/A2 इज इक्वल टू L2/L1, राइट। तो A1/A2 की वैल्यू यहां डालेंगे तो A2/A1 लेंगे, A2/A1 तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। A2/A1 इज इक्वल टू L2/L1, तो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 इंटू दैट इज L1/L2, तो यहां पर L1/L2 स्क्वायर। तो L1/L2 इज इक्वल टू व्हाट, NL1, राइट। स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा, L1/L1 कैंसल, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू व्हाट, N²R1, N²। और आप L इज इक्वल टू L1 लेंगे तो इसे हम L2 बता देंगे, L2 इज इक्वल टू NL1, L2 की वैल्यू NL1। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर A2/A1, A1/A2, L2/A1, A2/A1, L1/L2 यहाँ पर वैल्यू पुट की है, मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लेंथ हम लेके आए। और आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर बताएंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर L पहले है, तो ट्वाइस अगर आपने डबल की, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पहले L होगी, बाद में ट्वाइस L होती जाएगी, तो यहां जो 2 फैक्टर आएगा वो N इंडिकेट करेगा, राइट। मीन्स इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल, then what is the new resistance of the conductor? Then you can find out the new resistance, that is R2 is equal to 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू R1, तो कितना आ जाएगा 4R1। अगर आप पहले आपकी लेंथ L है और आप बाद में हाफ करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा L/2, तो यहां पर न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू R1/4, क्योंकि यहां पर आप n की वैल्यू क्या डालेंगे, 1/2। यहां पर आपने n की वैल्यू क्या ली, 2। ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अगर लेंथ डबल हो रही है तो एरिया हाफ हो रहा है, एरिया हाफ होगा ना। लेंथ अगर डबल होगी तो एरिया हाफ होगा। लेंथ अगर डबल है, ट्वाइस L1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा, तो A2 इज इक्वल टू क्या, A1/2 मीन्स व्हाट, नेक्स्ट एरिया जो न्यू एरिया आएगा वो हाफ हो जाएगा। लेंथ डबल, एरिया हाफ, राइट। लेंथ हाफ, एरिया डबल, लेंथ हाफ, एरिया डबल। ऐसे आप मतलब पूछने का एग्जाम्पल में तरीका अलग अलग हो सकता है, आप उस पर ध्यान देंगे। और आप अगर एरिया का भी रिलेशन दिया है तो लेंथ में अगर कन्वर्ट कर आप करेंगे तो इजी R2 इज इक्वल टू N² आपका आ जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है सभी को, बिल्कुल।